students. Today we are going to start our new chapter, which is chapter 3 in your NCERT book, which is fiber to fabric. Yes, we are going to dwell upon how our clothes are made, from where the fiber come, and what is fabric. Okay, so without any further ado, let's get started. All right. So before proceeding with the chapter, we need to know what we are going to study in this chapter. Okay, first of all, I'm going to tell you about the fibers. What are fibers? Okay, we have a little introduction about the fibers, and then we will know what are the types of fibers, and then we will proceed to know about the different processes, different mechanisms, or which have been done to form what? The product, which is fabric. Okay, and fabric or cell, both are same. It means cloth. Okay, we will have a detailed study on that, and then we will proceed when the final product has been made, how we are going to take care of the fabric which has been made, and then we will study about the sustainable and ethical fabric production, which is eco-friendly, does not harm the environment and does not harm the animals also. Okay, so first we are going to start about the very introduction of fiber. Before this, I'm going to ask you, have you ever seen all these items around you? I think you may have. First one is cotton. We all have cotton in our homes during the time of emergency, or and a common item. This cotton is very common item at our homes. And then you have seen these spindles. Spindles, your mom must have been using it to stitch your clothes, right? Spindles means dhage, okay? And these yarns, you all must have seen your aunt, your grandmoms are always indulged in weaving your sweaters with these yarns, right? So cotton is the raw material. Okay, raw material means the primary material which is required to form a fabric, and fabric is the cloth or textile. Okay, so from cotton as a raw material हम उससे निकालेंगे स्पिंडल यानी धागे. ओके, और ऐसे ही यार्न्स भी निकलते हैं. ठीक है, सो ऑल दीज थ्री आर ऑल्सो द रॉ मटेरियल्स टू फॉर्म अ फैब्रिक. अब रॉ मटेरियल्स को ऐसे समझेंगे कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट, जिससे हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है. जैसे कि आपका चॉकलेट बार्स में क्या होता है? हमें कोकोआ बीन्स चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए. ये सारे क्या है? कोकोआ बीन, शुगर, मिल्क, ये हमारे सारे रॉ मटेरियल्स हैं जिसको मिलके हम मिक्स करके हम चॉकलेट बार्स बनाने वाले हैं, राइट? ऐसे ही हमारा फर्नीचर, हमारा जो डेस्क है, चेयर है, टेबल है, इट ऑल रिक्वायर वुड. तो वुड क्या है? रॉ मटेरियल है, प्राइमरी मटेरियल है, जिससे हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं. ऐसे ही फैब्रिक को बनाने के लिए, यानी कोई क्लोथ को बनाने के लिए, यानी कोई टेक्सटाइल को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे धागे होते हैं, ये यार्न्स होती हैं. तो हम देखेंगे कि कितने तरीके के, पहले हम जानेंगे कि फाइबर क्या होता है. फाइबर रॉ मटेरियल है किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए. ओके, ऑलराइट. सो व्हाट इज एक्चुअली द फाइबर? Fiber is a basic unit of raw material used to produce the textile. Textile means fabric. Fabric means cloth. Okay? जो भी हम कॉटन की क्लोथ पहनते हैं, वुलन क्लोथ पहनते हैं, इन सबको बनाने के लिए फाइबर की जरूरत होती है. तो फाइबर क्या है? उस फैब्रिक का रॉ मटेरियल है, जो नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है. नेचुरल मीन्स जो हमें एनवायरमेंट से नेचुरली मिल रहा है, गॉड मेड है, और सिंथेटिक जो हम अपने आप बनाते हैं, मैन मेड, आर्टिफिशियल. ओके, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, फाइननेस और लेंथ. किस तरह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, हम कहाँ कहाँ उसे यूज कर सकते हैं, कितना स्मूथ है, उसकी लेंथ क्या है, इन सब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें नेचुरल फाइबर चाहिए या हमें सिंथेटिक फाइबर चाहिए. ऑल राइट, तो हम देखने वाले हैं. तो 2 टाइप्स के फाइबर्स हो गए हमारे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर मोस्टली प्लांट और एनिमल बेस्ड फाइबर्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव केम नेचुरल टू अस, राइट? सो either we get them from plant or we are going to get them from animals. Okay, examples हैं जैसे एनिमल बेस्ड फाइबर्स के, सिल्क से सिल्कवॉर्म से सिल्क मिलती है, शीप से वूल मिलती है, कैश्मीर से गोट्स मिलती हैं. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ फाइबर्स. ऐसे ही प्लांट बेस्ड फाइबर्स हैं जैसे कॉटन, जूट, फ्लेक्स और हैम्प. हम देखेंगे आगे. ओके, डोंट वरी. सिंथेटिक फाइबर्स जो कि मैन मेड फाइबर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, एक्रेलिक
पॉलिस्टर, नायलॉन, इन सब में आते हैं. ऑलराइट, अब ये आप देख सकते हैं स्क्रीन कॉटन फाइबर निकाली जा रही है कॉटन प्लांट्स में से. सो कॉटन प्लांट इज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉटन. ओके, इससे अब फैब्रिक बनने वाला है. ऐसे उसके फूल निकालते हैं जो हमारे काम में आते हैं हमारे वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए. सो इट्स अ नेचुरल बेस्ड फाइबर. ओके, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम नेचर ओनली. ओके, शेयरिंग इज द प्रोसेस. एंड देन कल्चर, वी ऑल नो दैट सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है जो कि बहुत ही मलबरी लीव्स पे वो फीड करता है, अपना खाना लेता है और हमको बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल देता है जिसको हम कहते हैं सिल्क वॉर्म. You can see the material, you can see the fabric on your screen. Okay, so these are natural fibers, plant based fibers. Now is वो fabric synthetic fiber. हम किस synthetic fiber बोलेंगे? Obviously we are saying that these are artificial fibers, these are man-made fibers. So all the fibers which are industry, in which the man is making in industry, okay, they are not at all coming from the nature. Okay, so you can see this fabric on your screen which are being made in the industries, and this application also has been given to you. This is a nylon fabric which is being used for this gas like balloon. Okay, this heat balloon, in this heat balloon nylon fabric is being used. Why nylon fabric is used, why not cotton? Because nylon is what you can have greater strength and cotton catches fire easily. Okay, that's why here they have choose the nylon fiber. Nylon synthetic fiber है जो कि strong है cotton से और ड्यूरेबल है, जो आगे तक चला सकता है. कॉटन जल्दी आग पकड़ लेगा, इसलिए हॉट एयर बैलून में उसका इस्तेमाल नहीं करते नेचुरल. ओके ओके, नाउ सम मोर एप्लीकेशंस वेयर नायलॉन फैब्रिक इज. नायलॉन की रोप्स होती हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं और रेजिस्टेंस देती हैं किसको? एब्रेशन को. हियर यू कैन सी नायलॉन, अ टाइप ऑफ पोलीअमाइड, इज नोन फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, वियर एंड टियर. कई बार आपने देखा कि रस्सी को जब बार बार खींचा जाता है तो वो कटने को आ जाती है, उसे हम बोलते हैं एब्रेशन. वियर और टियर जब होता है, तो इसमें ऐसे नहीं होता. नायलॉन की जो ये फैब्रिक होती है, नायलॉन की रोप्स होती है, इसलिए कैंपिंग में यूज होते हैं, तो इसमें इलास्टिसिटी बनी रहती है, स्ट्रांग होती है. ओके, इसलिए कैंप में यूज करते हैं, क्लाइंट्स में यूज करते हैं. जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये पॉलीमर्स की चेन से बने होते हैं. पॉलीमर्स की चेन क्या होती है? पॉलीमर की चेन मतलब एक मोनोमर की चेन होती है. मोनोमर यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो शो करते हैं अपनी रिसेम्बलेंस प्लास्टिक से, और हम सभी को पता है कि प्लास्टिक इज नॉट एट ऑल इको फ्रेंडली. So these man-made artificial synthetic fibers are not at all eco-friendly, but they have been made by man for their own सर्वाइवल, जिससे ये स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है इनकी, तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं. ओके, दीज आर द नायलॉन रोप्स, यू मस्ट हैव सीन. Gyms also, these nylon ropes are being used, okay, because they are too much of strength and these are not able to they are resistant to abrasion, wear और tear इसमें नहीं होता जल्दी. Okay, okay, now the polyester fiber, the second most synthetic फाइबर. आपके जितने भी रेन कोट्स हैं, जितने भी आपके वो कपड़े होते हैं जिसको आप जाके वर्कआउट करते हैं, जिसमें वो सारे हमारे पॉलीमर किससे बने होते हैं? पॉलिस्टर फैब्रिक से बने होते हैं. ओके, इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, जल्दी कटते फटते नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वर्सेटाइल होते हैं, पहन के जा सकते हैं. ओके, आपके पसीनों को सोख लेते हैं. दैट इज वाई दे आर बीइंग यूज्ड एज the fabric in mostly in the raincoats and in your workout clothes. Okay, and then comes the acrylic fiber. You must have seen in your in some kind of houses, sofas are being used, scarves. These are lightweight, okay, and lightweight in nature, excellent resistance to UV rays, means इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी, and weather conditions में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. So all these acrylic, polyester and one nylon, these are synthetic fibers, man-made fibers. These are not made, these have not came to us naturally, but artificial, man-made, man has made them.
Okay, now on your screen very important questions, difference between natural and synthetic fibers. Okay, ये क्वेश्चन आता ही आता है इसमें. हमने अभी तक पढ़ा है फाइबर के बारे में कि फाइबर होता क्या है, कितने तरह के होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक, उसकी एप्लीकेशन, उसकी यूसेज पढ़ी है हमने. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंसेस. ये डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, आपको डेफिनेशन के साथ बोलेंगे कि डिफरेंसेस दो. ठीक है, तो सबसे पहले तो उनकी सोर्स से हम डिफर कर सकते हैं कि नेचुरल फाइबर्स प्लांट्स नेचुरली है, प्लांट्स एनिमल मिनरल से आ रहे हैं. सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल सिंथेसिस हैं, केमिकल लगाए गए हैं प्रोड्यूस करने के लिए. सो दीज आर मेजरली पेट्रोलियम based, you can say the plastic base. Okay, examples cotton, wool, silk, linen, उसके polyester, nylon, acrylic हमने पढ़ा. प्रोडक्शन कैसी होती है नेचुरल की, एग्रीकल्चर, एनिमल फार्मिंग होती है, इसकी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है. बायोडिग्रेडेबिलिटी कैसी है, क्या वो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं नेचुरल फाइबर्स, बिल्कुल, बट सिंथेटिक फाइबर्स नो. कंफर्ट लेवल, ये बहुत हल्के होते हैं और हाईली ब्रीथेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और वेरी करता है सिंथेटिक में, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हैवी लगते हैं हमें. ड्यूरेबिलिटी कैसी रहती है नेचुरल फाइबर्स की, लोअर रहती है, मतलब कटने फटने का डर रहता है उसमें. और सिंथेटिक फाइबर्स की हाई होती है, रेजिस्टेंट होती है वियर एंड टियर, जो मैंने आपको एक टर्म बोली थी एब्रेशन. ओके, रेसिस्टेंट मतलब स्टॉपेज. ओके, स्टॉपेज लगा देते हैं. मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हाई रहता है नेचुरल फाइबर्स में एंड सिंथेटिक में लो रहता है, तभी तो हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है हमारे वर्कआउट क्लोथ्स में, दैट आर मेड अप ऑफ नायलॉन. इलास्टिसिटी लोअर रहती है और सिंथेटिक फाइबर्स में हायर रहती है. और कुछ कॉस्ट कैसी है, नेचुरल फाइबर्स की हायर होती है और लोअर होती है, क्योंकि इजीली मेड अप हो रही है ना, वहाँ नेचुरल में हमको जाना पड़ रहा है, प्रोसेसेस करने पड़ रहे हैं. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खराब होता है, डेंजरस होता है किसका, हमारा सिंथेटिक का, और ये रिन्यूएबल होता है. एप्लीकेशंस हाई क्वालिटी क्लोथिंग, होम टेक्सटाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, स्पोर्ट्स वेयर, इंडस्ट्रियल यूसेज, होम टेक्सटाइल्स में इसको हम यूज़ करते हैं, किसी सिंथेटिक फाइबर्स को. So that's all with the part 1 of this chapter. We are going to proceed with the other portion of this chapter in the next parts. Till then, keep on revising and keep on learning. Bye.